नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, एज़दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, एज़दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह। नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, एज़दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, एज़दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह। ਜਦੋਂ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਖਾਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਕਰੂਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਥੋਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਦਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਪੰਡਤਾਊ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪਾਕ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਲੰਗਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਤੇ ਪਾਖੰਡ ਹਰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਧਰਤ ਦਾ ਹਰ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਪਲ ਪਲ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋ ਰਹੀ ਵਤਨ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਆਬਰੂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰੀ ਨਾ ਆਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਗਰਦੋ ਗੁਬਾਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਕਾਦਰੇ ਹਰਕਾਰ ਕਾਮੁਲ ਅਖਲਾਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਦੀ ਰਾਖ ਤੋਂ ਵੀ ਹਲਕੀ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਜਿਸਮਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਲੱਦਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਲਈ ਮੋਏ ਜ਼ਮੀਰ ਚੋਂ ਅਣਖ ਦੀ ਲਟ ਲਟ ਬਲਦੀ ਜਵਾਲਾ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚਾਰ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟਿਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਸਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜ ਕੇ ਗਿੱਦੜ ਕੁਰਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਹਾੜਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਗਿੱਦੜ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਅਲੌਕਿਕ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਸਾਜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਿੜ ਅੰਦਰ ਅਸਲੋਂ ਨਵਾਂ ਤੇ ਅਦਭੁਤ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਬੇਕਸਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਤੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਪਲਣ ਵਾਲੇ ਜਾਬਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਟੁੱਕੜ ਬੋਚਾਂ ਨੇ ਜਦ ਇਲਾਹੀ ਕੌਤਕ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਰਦੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਮਲੀਨ ਕੰਧਾਂ ਸਿਰਜ ਕੇ
ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਊਚ ਨੀਚ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕੰਧਾਂ ਵਲਗਣਾ ਢਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਗਰੂਰ ਹੈਂਕੜ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਡਤਾਊ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਗਰਸੇ ਹੰਕਾਰੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਮੌਜਜ਼ਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੜਪੰਚ ਨੂੰ ਚੀਥੜੇ ਚੀਥੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਪਿਆ। ਉਹ ਧਰਮ ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਧਰਮ ਜਿਸ ਦੀ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਪਾਖੰਡ, ਭਰਮਾਂ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੇ ਕਪਟ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਰੇਤ ਦੇ ਬੁਰਜ ਵਾਂਗ ਕਿਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਜੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਖਾਲਸਾ ਸੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਨਿਰਭੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਤੇ ਅਗੰਮੀ ਤਾਕਤ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਈ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖਤਰਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਕੂੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਮਾਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਨ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਂਝਾ ਫੌਜੀ ਮਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸੈਨਾ ਤੇ ਬੇਪਨਾਹ ਮੁਗਲਿਆ ਫੌਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਮੱਕਾਰ, ਦਗੇਬਾਜ਼ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ 22 ਜੇਠ ਸੰਮਤ 1761 ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਉੱਪਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਨਗਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ 5-500 ਦੇ 5 ਜੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ, ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ, ਹੋਲਗੜ੍ਹ ਤੇ ਆਗਮਪੁਰ 'ਚ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੀਰਾਂ, ਤਲਵਾਰਾਂ, ਨੇਜ਼ਿਆਂ, ਬਰਛਾਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ, ਤੋਪਚਿਆਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿਰ ਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਜੰਗ ਦੇ ਸਿਆਹ ਹਨੇਰਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਮਸਾਨ ਵਿੱਚ ਪਲ ਪਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲੱਗੇ। 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਸਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਜਦ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਦਮ ਉਖੜਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਬਰਾ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਸਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਦਾ ਆਲਮ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋੜਿਆ। ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਜਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਤ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਮੁਗਲਈ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਥੋਥਾਪਣ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਂਝਾ ਫੌਜੀ ਮਹਾਜ਼ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਮੋਹਰੇ ਦੇਣ ਦੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨ ਆਰੰਭੇ। ਕਦੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਏਲਚੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਮਕਰ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੂੜੇ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਮੁਗਲਿਆ ਫੌਜ ਦੇ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਚਲਣ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਸਨ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੀਤਾ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਗਲਿਆ ਫੌਜਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪੈਂਥੜਾ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਸਨ 1704 ਦੀ ਠੰਡੀ ਯਖਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਤੁਰੇ। ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਭਿਆਨਕ ਰਾਤ ਅਤੇ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹੀ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1500 ਸਿੰਘ ਆਪ ਦੇ ਹਮਰਾਹ ਸਨ। ਕੁੱਪ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ, ਕੜਕਦੀ ਸਰਦੀ, ਸ਼ੂਕਦੀਆਂ ਸੀਤ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਣਮਣ ਕਾਣੀ ਦਾ ਆਲਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ।
ਜਿਉਂ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਨ ਉਹ ਇਮਾਮ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਦੇ ਮੱਕਾਰੀ ਦੇ ਕੱਜਣੋੜ ਭੁੱਖੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਲੱਗੇ। ਇਧਰ ਕਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਰਦੀ ਤੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਪੂਰੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਣਮਣ ਕਾਣੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ੂਕ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ 'ਚ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿੰਘ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰਸੋਈਏ ਗੰਗੂ ਨੇ ਚੰਦ ਟੁਕੜਾ ਟਕਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵੇਚ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਗੱਦਾਰੀ ਦੀ ਸਵਾਹ ਪਵਾ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖੁਦ ਦਗੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਲਖ ਮਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜਿਹੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਸੂਮ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਮਵਾਰ 7 ਅਤੇ 9 ਸਾਲ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਇਹ ਅਕੈ ਦੁਖਾਂਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ 40 ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ 2 ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 18 ਤੇ 14 ਸਾਲ ਸੀ, ਸਮੇਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਚੌਧਰੀ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਨੁਮਾ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਆਣ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਲੱਖ ਸੀ, ਇਸ ਗੜੀ ਨੂੰ ਆ ਘੇਰਿਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਥੱਕੇ ਹਾਰੇ ਭੁੱਖਣ ਪਾਣੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਲਾਂ 'ਚ ਸਫਾਇਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਸੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗੜੀ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੜੀ 'ਚੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਲਾ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਸੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਦਮ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਚੰਮ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਇਆ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਦਾ ਆਹਾਰ ਬਣਨ ਲੱਗਾ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਨੇਜ਼ੇ ਧੂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਨਿੱਤਰ ਪਏ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗੁੰਜਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੇ ਐਸੇ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਏ ਕਿ ਅੱਖ ਦੇ ਪਲਕਾਰੇ ਅੰਦਰ ਮੋਗਲੀਆ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਆਹੂਲਾ ਸੁੱਟੇ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਆਬਰੂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸਿੰਘ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਗੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। ਜੰਗ ਹੋਰ ਭਖਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟਿਆਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੌਮ ਅਤੇ ਵਤਨ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਜੂਝ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਅਤੇ ਵਤਨ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਅਦਭੁਤ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਲੱਭਣੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੁਲਕੋ ਕੌਮ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਤੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਥੱਕੇ ਹਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਤਨ ਦੀ ਆਬਰੂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਦਿਨ ਭਰ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੇਬਹਾ ਫਰੇਬੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਸੰਗ ਲੜ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਜਾਣ ਦੀ ਅਲੌਕਿਕ ਦਾਸਤਾਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਕ ਅਮਰ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਣੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਹਨੇਰਿਆਂ 'ਚ ਭਟਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਿਦ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗੜੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਦ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ ਤਾਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਾ ਪਾ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਾ ਰਹੀ।
क्योंकि गुरमते नूं मन्नण लई ओह नैतिक तौर ते वचनबद्ध सन ते आखिरकार 3 ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ गुरु साहब ने कच्ची गढ़ी त्याग दित्ती। इधर जदों तक दुश्मन दीआं फौजां कच्ची गढ़ी ते काबज होईयां, गुरु साहब काफ़ी दूर जा चुके सन। इन्हां दे संगीन हालात च गुरु साहब ने वक्त दे जाबर शहनशाह अबू जफर मुहीउद्दीन मुहम्मद औरंगजेब नूं 2 खत लिखे तां जो उसनूं उसदी हुकूमत दे अणमनुखी चलन दी खबर ते उसदे अपने किरदार दा इल्म हो सके। पंजाब दे बहादरो जानसारो, बुलंद ख्याल, रोशन ज़मीर वतन परस्तो, ये गल याद रहे कि दुनिया की तवारीख विच तुहाडी बहादरी ते जिंदा दिली दी अमर कहानी दा हर सफ़ा अपनी कलम नाल वक्त ने सुनहरी अल्फाज च लिखिया है। 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज द्वारा औरंगजेब बादशाह नूं फारसी बैन च लिखे 2 खत साडी अजीम शान तवारीख दी बेमिसाल दास्तान नूं बयानदे ने। इन्हां दोवें खतां दा हर अखर बेबसी बेकसी दियां तारीखियां च दम तोड़ रही लाचार मनुखता नूं गैरत ते अणख नाल सर उठा के जीण दा अलौकिक सबक है। गुरु साहब ने सूबा सरहंद मुगलिया फौजदारां, अहलकारां, एलचियां ते पहाड़ी राजियां दीआं कालियां करतूतां तो औरंगजेब नूं आगाह करवाउण लई पहला खत दसंबर महीने दे आखिरी हफ्ते सन 1704 विच लिखिया। इसे पहले खत दा नाम फतेहनामा है। बादशाह औरंगजेब तो फतेहनामे का जवाब पाउण उपरंत गुरु साहब ने दूसरा खत सन 1705 ईस्वी के आरंभ च पिंड दीना कांगड़ तो लिख के औरंगजेब वल दखण भेजिया। भाई दया सिंह अते भाई धर्म सिंह जिन्हां नूं यह खत औरंगजेब नूं दस्ती सौंपण की सेवा लाई सी, कुछ एक मुश्किलों तो बाद ये इलाही तहरीर जफरनामा अहमद नगर विखे औरंगजेब नूं हत्थी सौंपण च कामयाब हो गए। खत पढ़दियां ही औरंगजेब ते जिवें अल्लाह दा कहर टुट पिया, वो गमगीन हो गया ते पछतावे दी अग विच सड़न लगा। खत पढ़न उपरंत औरंगजेब ने गुरु साहब नाल फौरन मुलाकात लई सद्दा देण वास्ते शाही दूत तलवंडी साबो रवाना कीते। बादशाह ने गुरु साहब की दखण यात्रा नूं यकीनी बनाउण लई मुनीम खान नूं लाहौर विखे सख्त हदायत भेजियां। औरंगजेब दे सद्दा पत्तर ते पूरी गंभीरता नाल विचार करके गुरु साहब सन 1706 ईस्वी दे आखिर च औरंगजेब नाल मुलाकात करन लई तलवंडी साबो तो चल पे, पर भगौर राजस्थान विखे औरंगजेब दे अचानक कालवास हो जाण दा समाचार सुन के आपने दिल्ली वल कूच करन दा फैसला कीता। हिंद दी शान सूरबीर वतन परस्तो ਸਿੰਘੋ, इन्हां खतां च साडे गौरवमई इतिहास दीआं अद्भुत कहानियां अंकित ने। इस उम्मीद नाल कि समुची वतन परस्त सिख कौम इन्हां महान रचनावां नूं अनुवाद सहित सरवण करके अपने अलौकिक धर्म दे महानतम सूत्रां नूं डूंघाई तो वाचण दा यतन आरंभेगी। असां वाहिगुरू अकाल पुरख दी किरपा सदका ये उपराला कीता है। असतार गुरु गोबिंद सिंह, आलमुल असतार गुरु गोबिंद सिंह, अब्र रहमत बार गुरु गोबिंद सिंह, अब्र रहमत बार गुरु गोबिंद सिंह, मुकबल मकबूल गुरु गोबिंद सिंह, मुकबल मकबूल गुरु गोबिंद सिंह, वासलो मौसूल गुरु गोबिंद सिंह, वासलो मौसूल गुरु गोबिंद सिंह, नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, एज़दी मंसूर। नामा गोबिंद सिंह बनाम औरंगजेब भाव फतेहनामा। ये पत्तर दशमेश जी ने माछीवाड़े तो औरंगजेब नूं लिखिया। बनामे खुदाबंदे तेगो तबर, खुदाबंदे तीरो सनानो सिपर,
खुदावंदे मर्दाने जंग आजमा, खुदावंदे यसपाने पादर हवा। हे औरंगजेब, मैनू खुदा दी कसम ते कसम है मैनू तीरां कमाना तलवारां नेज़ियां दी जो सूरबीर मैदाने जंग विच पहनदे ने। मैनू कसम है उन्हां बहादरां दी जो संगीन खतरियां 'च सिर धड़दी बाजी लाउंदे ने, ते कसम है उन्हां घोड़ियां दी जो हवा दी बराबरी करदे ने। मैनू सच्चाई कहण तो कोई डर नहीं। हमा को तुरा पादशाही बदाद, बमा दौलते दी पनाही बदाद, तुरा तर्क ताजी बेमिकरो रिया, मरा चारा साजी बसित को सफा। जिस अल्लाह पाक ने तेनू बादशाह अता फरमाई है, उस ही परवरदिगार ने मैनू धर्म रखिया दी दौलत नाल नवाजिया है। धोखेबाजी ते लुटमार करना तेरा इको एक निशाना है। छल ते मक्कारी तेरियां रगां विच है, पर मेरी तदबीर सच्चाई ते सिदक नाल है। न ज़ेबत तुरा नामे औरंगजेब, जे औरंगजेबा नबायद फरेब। तस्बीहत अज सुजाओ रिश्ता है बेश, खजा दाना साजी वजा दामे ख्वेश। तू अपने आप नू बादशाह कौन है, पर कपट ते फरेब करके तू रब दे विश्वास नू ढा लाई है। की तैनू अजिही बादशाहत फबदी है जिस दी नी मक्कारी ते टिकी हुई होवे। तेरे हत्थां 'च फड़ी माला भोले भाले लोकां नू फा लैण वाला कपटी जाल है, ते इस दे मनके फरेब दा चोगा ने जिस दा लालच दे के तू मासूम रियाया दा शिकार करदा। तू खाके पिदर रा बकिरदारे जिस्त, बेखूने बिरादर बदादी सरिश्त। वज़ा खाना ए खाम कर दी बना, बराए दरे दौलते ख्वेशरा। तू अपने बाप नाल बदसलूकी कीती, अपने सगे भरावां दी रत नाल हथ रंगे। तेरे ना काले कारनामे नाल तेरी आत्मा करूप है। तेरे पाप तेरियां नस्लां दे मूंह ते बदनुमा दाग ने। अपने सकियां दी रत बहा के तू अपनी हुकूमत उसारी है, जो कि कूड़ दे एक थोथे अडंबर तो बिना कुछ नहीं। मनकनू बेअफजाले पुरशे अकाल, कुनमज़े आबे आहन चुना बरशगाल। के हरगिज अजां चार दीवारे शूम, निशानी नमानद बरी पाक बूम। जे कोहे दकन तिश्ना काम आमदी, जे मेवाड़ हम तलक जाम आमदी। बरी सूचू अकनू निगाहत रवद, के आ तलक यो तशनगीयत रवद। मैं हुण वाहेगुरु अकाल पुरख दी कृपा नाल फौलादी पानी अमृत दी वरखा कीती है, तां जो बेइंसाफी जुल्म हिंसा ते धक्केशाही दे कूड़ पसारे नू नेस तो नाबूद करके समाज दे चेहरे नू बेदाग कीता जा सके। दखण दियां फौजी मुहिमां च तैनू लक तोड़वी हार दा मूंह वेखना पिया। मेवाड़ च तू सिर पनाया, हुण तेरी लहू दी प्यास होर भड़की लगदी है। जो तू अपनी हिरसी ते ललचाई हुई नज़र पंजाब दे पाक चेहरे वल भुआउण दी हिम्मत कीती है। तू सोचदा तेरी दखण दी प्यास इत्थे मिट जावेगी। चुना आतशे जेरे नालत निहम, जे पंजाब आबत न खुर्दन दिहम। चे शुदगर शिगाले बमकरो रहा, हमी कुश्त दो बच्चाए शेर रा। तू पंजाब आत सही, मैं तेरे पैरां हेठ अग बाल देंगा। ऐसे हालात पैदा करांगा कि पंजाब की धरती तो तेनू पानी का कतरा भी नसीब नहीं होना। मैं तेरे चैन आराम नू लांबू ला दूंगा। चालाक ते शातिर गिदड़ वांग सारे घिनौने हथकंडे वर्त शेर दे दो बच्चे मार के तू ये ना समझ तू कामयाब होया। चू शेरे ज़िया जिंदा मानद हमें, से तो इंतकामे सतानद हमें। न दीगर गरायम बिनामे खुदात, के दीदम खुदाओ कलामे खुदात। तैनू भुलना नहीं चाहिए कि बहादुर शेर अजे जिंदा है, जो तैनू तेरे घिनौने अपराधां की सजा जरूर देवेगा।
अल्लाह दे नाम ते जो तू लगातार धोखेबाजियां खिला रही ने, उन्हां दी मैनू खबर है कि तेरे कर्मां चो तेरा अखौती रब भी मैं वेख लिया। तेरे फरेबां तो साफ जाहिर है कि तू रब दे किन्ना कु नेड़े है। बेसौगंदे तो एतबारे नमांद, मरा जुज़्ब शमशीर कारे नमांद। तू ही गुरगे बारा कशीदा अगर, नहम नीज शेरे ज़दामे बदर। तेरियां कसमां ते हुण मैनू उक्का यकीन नहीं। तलवार दी ज़बान नाल तेरे झूठे बोलां दा जवाब देण तो बगैर मेरे कोल होर कोई चारा ही नहीं। मन्निया कि तू बड़ा शातिर ते तजुर्बेकार बगियाड़ है, पर मेरे बहादुर आजाद शेर नरां सावें तेरी औकात ही की है। तेरे जाल शेर नू कैद नहीं कर सकणगे। अगर बाज गुफ्तो शुनीदत बेमास्त, नुमायम तुरा ज्यादा ए पाको रास्त। जे कदे तर्क च तेरा विश्वास बनिया ते तैनू मेरे नाल गलबात दा मौका फराहम होया तां सच्चा राह मैं तैनू जरूर विखावांगा। बेमैदां दो लश्कर सफारा शवंद, जे दूरी बहम आशकारा शवंद। मयाने दो मानत दो फरसंग राह, चुआ रस्ता गर्ददी रज़मगाह। पर जे तू फसाद दा राह ही चुन लिया तां फिर आ जा। आपां इंज करदे हां कि मैदाने जंग च अपने दोवें लश्कर सफा बन के इस तरह खलो जाण कि दोवें एक दूसरे नू वेख सकन। मैदाने जंग इस तरह सजिया होवे कि दोवें फौजां च 2 फरलांग दी दूरी होवे। अजां पस दरां आरसाए कारजार, मनायम बेनज़दे तू बादो सवार। तू अजनाजो नेमत समर खुर्दा है, जे जंगी जवाना न बरखुर्दा है। इस तरह सजे जंग दे मैदान च आपां ही दोवें हथियार बंद होके नितरीए। मैं इकल्ला ही आवां ते तू 2 घोड़ सवारां नाल आवीं। हुण तक तू अपने सिपाहियां नू लड़ा लड़ा के उन्हां दी मेहनत दे मिठे फल आप खांदा रहा। एक बार जरा मेरे सामने होण दा जेरा तां कर, मैं तैनू सिखावांगा जंग किवें करीदी है। बेमैदां बया खुद बेते वो तबर, मकुन खल्के खल्लाक जेरो जबर। ताल ते तलवार लेके खुद मैदाने जंग च उतर, पर अपने हिरस ते हवस लई मनुखता दा काण ना कर। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। जफरनामा भाव फतेह पत्र। श्री मुखवाक पातशाही 10वीं। हमदो सना भाव बंदना। कमाले करामात कायम करीम, रजा बख्शो राज़क रिहाको रहीम। अमा बख्शो बख्शिंदो दस्तगीर, खता बख्शो रोजी देहो दिल पजीर। शहनशाहे खूबी देहो रहनमू, के बेगूनो बेचूनो चूं बेनगू। न साजो न बाजो न फौजो न फर्श, खुदा बंदे बख्शिंदे ऐशो अरश। जहां पाक जेरस्तो जाहिर जहूर, अता में देहद हमचू हाजिर हजूर। अता बख्शो पाक परवरदगार, रहीम अस्तो रोजी देहे हर दयार। अकाल पुरख अलौकिक शक्तियां दा सिखर, हमेशा रहन वाला, रिज़्क दाता खुशियां बख्शण वाला, मुक्ति दाता ते रहम करन वाला है। वो इंसाफ देन वाला, शांति दा नूर बखेरन वाला, मेहरबान ते निआसरियां दा आसरा है। अपनी अपार बख्शिशां नाल वो समस्त जीवां नूं निहाल करदा है ते दयालता नाल गुनाह बख्शदा है। वो नेकियां देन वाला, बादशाहां दा बादशाह ते सच्चा मार्गदर्शक है, जिसदा कोई रंग रूप नहीं ते ना ही कोई उसते तुल है। वो शहनशाह अकाल पुरख फौजी साजो समान तो रहत है, ना तो उसकी कोई सेना है ते ना ही वो ऐशो इशरत दा सामान उस कोल है। पर जे मेहरबान हो जावे तां दोवें जहान दियां खुशियां बख्श दिंदा है। वो दुनिया तो निर्लेप
सर्व शक्तिमान सर्व व्यापक है, सारी सृष्टि का मालिक ते वडियाइयां बख्शण वाला है। वो सदा पवित्र दातां देण वाला जगत पालक दयावान ते संसार नूं रोजी दिंदा है। नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, हेज़दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, हेज़दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह। नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, हेज़दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, हेज़दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह। नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, हेज़दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, हेज़दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह। के साहिब दियार अस्तो आज़म अजीम, के हुस्नल जमाल अस्तो राज़क़ रहीम, के साहिब शऊर अस्त आजज नवाज, गरीबुल परस्तो गनीमल गदाज। वो अकाल पुरख खंडा ब्रह्मंडा दा मालिक ते सर्वश्रेष्ठ है। वो अत्यंत हुसनाक रिज़्क दाता ते रहमत करन वाला है। वो परमात्मा परम सोजीवान विवेक दा मालिक, निमाणियां नूं नवाजण वाला, गरीबां दा पालक ते दुश्मनां दा नाश करन वाला है। शरीयत परस्तो फजीलत मआब, हकीकत शनासो नबीउल किताब, के दानिश पिजो अस्तो साहिब शऊर, हकीकत शनास अस्तो जाहिर जहूर। शनासिंदाए इल्मे आलम खुदाए, कशाइंदाए कारे आलम कशाए, गुजारिंदाए कारे आलम कबीर, शनासिंदाए इल्मे आलम अमीर। वो धर्म पालक, वडियाइयां दा केंद्र, असलीयत दा ज्ञाता ते सर्व धर्म ग्रंथां दा प्रकाशित सोमा है। वो विवेक दा जन्मदाता, हकीकत दा जानकार ते ज्ञान दा भंडारा है। उसदी जोत ही हर एक सांचे च प्रकाशमान है। वो वाहिगुरु कुदरत दे हर राज तो जाणू है, जगत दी हर विद्या दा जानकार है। उस तो बगैर दुनिया दीयां दुख तकलीफां ते मुश्किलां दा हल कोई होर करन दे समर्थ ही नहीं।
दास्तां भाव बयान मरा एतबारे बरी हल्फनेस्त के इज़्द गवाह अस्तु यज़दा यकेस्त न कतरा मरा एतबारे बरोस्त के बख्शी ओ दीवा हमा किस्ब गोश्त कसे कौले कुरां कुनद एतबार हमा रोज़े आखिर शबद जार ख्वार हमारा कसे साया आयद बजेर बरो दस्त दारद न जागे दलेर। ऐ औरंगजेब मैं वाहेगुरु अकाल पुरख नूं हाज़र नाज़र जान के तैनूं इह दस दियां कि मैनूं तेरियां कसमां तेरे बोलां ते उक्का ही भरोसा नहीं। तेरी जबान तो निकलिया कोई भी वचन तेरे प्रति मेरे अंदर रत्ती भर भी विश्वास नहीं जगा सकता। तेरे सारे बख्शी दीवान सेनाधिकारी झूठे ते बेईमान ने। तेरियां कुरान दीयां कसमां लोकां नूं फा लैण वाला जाल ने ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਨਾਲ ਬੇਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁਮਾ ਜਿਹੇ ਆ ਤੁੱਤੀ ਪੰਛੀ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚਲਾਕ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੇ ਕਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਨਗੇ। ਕਸੇ ਪੁਸ਼ਤ ਉਫਤਦ ਪਸੇ ਸ਼ੇਰ ਨਰ न गीरत बुजो मेशो आहू गुजर बेमुसफ कसम खुफिया गर खुर्द में न यकगाम हम पेश अजा बुर्द में। जे कोई मनुख शेर दी शरण लैंदा तां बकरी भेड़ हिरन दी की ताकत कि उसके कोल दी भी लंघ सके। जे मैं खुफिया तौर ते भी कुरान दी कसम खादी हुंदी तां मैं अपनी थां तो एक कदम भी अगे ना वधदा। गुरसना चिकारे कुनत चहल कर के दहलक बरायद बरो बेखबर के पैमा शिकन बेदरंगा आमदंद मया तेगो तीरो तुफंगा आमदंद बिलाचारगी दरमया आमदम बेतदबीरे तीरो कमा आमदम चुकारज हमा हीलते दरगुजश्त हलालस्त बुर्दन बेशमशीर दस्त। ਜਦੋਂ ਲਹੂ ਦੀ ਪਿਆਸੀ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਆ ਟੁੱਟੇ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਥੱਕੇ ਹਾਰੇ ਭੁੱਖਣ ਪਾਣੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 40 ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਜੂਝਦੇ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੂੰਹੋਂ ਖਾਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੋਲਦਾ ਤੀਰਾਂ ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਤੇਰਾ ਲਸ਼ਕਰ ਹਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੀਥੜੇ ਕਰਦਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ ਟੁੱਟਾ। ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਫਰੇਬੀ ਚਾਲਾਂ ਹੀ ਖੁਦ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਸਤਰ ਤਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਚਾਰੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਤਲਵਾਰ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਚੁਰਾ ਕਸਮ ਰਾ ਕੁਨਮ ਏਤਬਾਰ ਵਗਰਨਾ ਤੂ ਗੋਈ ਮਨੀ ਰਾ ਚਿਕਾਰ न दानम कई मर्दरो बाह पेच वगर हर ई राह नयारद बेहेज। ऐ औरंगजेब तू ही दस इस कदर धोखा खान तो बाद कौन तेरियां कुरान दियां कसमां ते यकीन करेगा। तेरा लश्कर जे मक्कारी दा राह ना अपनाउंदा तां मैनू की लोड़ सी मैं जंग दा रस्ता अख्तियार करदा। तेरे फरेबी लश्कर ने जिस दी जहनीयत लूंबड़ वर्गी शादराना है मेरे नाल छल कीता। जे मैनू उसकी औकात दा पहला ही पता हुंदा तां मैं ये राह क्यों धारण करदा। हर आकस के कुरान बेकौल आए दश नज्द बस्तनो कुश्तनी बाए दश बरंगे मगज स्याह पोश आमदंद बयक बारगी दर खरोश आमदंद। जो कुरान की कसम खाते ने उन्होंने कसम की पालना करनी चाहिए है ना कि इसनूं तोड़ के फरेब कमाना चाहिए। कसमां खा के छल कपट करना अणमनुखी कर्म है। कसमां खाण उपरंत तेरी स्याहपोश फौज शोर मचाउंदी हुई मखियाल वांग साडे ते टुट पई। हराकस दीवार आमद बरूं बखुरदन यके तीर शुद्ध कर के हूं कि बेरून आमद कसे जा हिसार न खुर्दन तीरो न गश्तन ख्वार चुदी दम के नाहर बयामद बजंग चशीदन यके तीरे मंदे दरंग
हम आखिर गुरेजंद बजाए मसाफ बसे खाना खरदंद बेरू गजाफ। तेरी सैना चो जेड़ा भी दीवार दी ओट चो जरा भी बाहर आया साडा तीर खा के लहू विच गर्क हो गया। जेड़े दीवारां उले रहे वो साडे तीरां तो भी बच गए ते ख्वार होण तो भी। जद मैं नाहर खान नूं मैदाने जंग विच तकिया तां एक तीर नाल उसनूं थां ही ढेर कर दिता। रणभूमि का खौफनाक नज़ारा वेख के वो सारे पठान भज उठे जो पहला शेखियां मारते सन कि अफगाने दीगर बयामद बेजंग चू सैले रवा हम चू तीरो तुफंग बसे हमला करदन बेमर्दानगी हमज होशगी हमज दीवानगी। उस तो बाद एक होर पठान गुस्से च भरिया लहू लहू करदा हर वांग साडे वल ताया। तीरां ते बंदूकां दा आसरा लै वो मैदाने जंग विच नितर पिया। बड़ी बहादुरी नाल उसने गुस्सा खा के कई हमले कीते जिन्हां चों कुछ सियाणप नाल ते कुछ नासमझी नाल। बसे हमला कर दो बसे जख्म खुर्द दो कसरा बजा कुछ तो जा हम सुपुर्द कि ख्वाजा मरदूद साए दीवार नामद बेमैदां बेमर्दान अवार डरेगा अगर रूए उदीद में बैक तीर लाचार बख्शीद में। हम आखिर बसे जख्म तीरो तुफंग तो सुए बसे कुश्ता सद बेदरंग बसे बान बारी दो तीरो तुफंग जमी गश्त हमचू गुले लाला रंग। इन्हां हमलियां च उसने बहुत फट खाधे ते दो जणियां नूं उसने मार भी दिता पर आखिर उसनूं अपनी जान तो हथ धोने पे। मौत दे खौफ तो डरदा ख्वाजा जफर बेग भी अपनी खुड तो बाहर ना आया ते बुज़दिलां वांग कंध ओले लुक के अपनी जात नूं ढाह लाउंदा रहा। जे किते एक वारी भी मैं उसकी शक्ल वेख लैंदा तां एक तीर उसनूं भी बख्श दिंदा। तीरां ते बंदूकां ने ऐसे रंग विखाए कि अनेकां सूरबीर जिस्म छड्ड तुरे ते अणगिणत जख्मी हो गए। तीरां बंदूकां नेज़ियां दे फट्टां ने तरत लहू लुहान कर दित्ती। इन्ना खून विहा लगदा सी जिवें किसी ने तरत नूं लाल रंग च रंग दिता होवे। सरो पाए अंबो चंदा शुदय के मैदां पुरज गू चोगा शुदय तरंकारे तीरो तरंगे कमा बरामद यके हाओ हूवस जहां। बहादुरां दियां खोपड़ियां ते हड्डियां पसलियां नाल सारा रण खेतर भर गया। सिरां तड़ां ते हड्डां दा खिद्दो कुंडियां वांग ढेर लग गया। तीरां कमानां दी शू शू ने ऐसा घमसान मचाया कि चीखो पुकार नाल धरत आसमान गूंज उठे। दिगर शोरशे कैबरे कीना कोश जे मर्दान मर्दा बिरू रफ्त होश। हम आखिर चे मर्दी कुनदकार जार के बरचेल तनायद बेशुमार चरागे जहां चू शुदा बुरका पोश शाहे शबरामद हमा जलवा जोश। हराकस बकौले कुरान आयदश के यजदा बरो रहनुमा आयदश। न पेचीदा मुए न रंजीदा तन के बेरू खुदाबुर्द दुश्मन शिकन। न दानम कई मर्दे पैमा शिकन के दौलत परस्तस तो ईमा शिकन। फिर मारू बरछियां ने रण विच तरथली मचा दित्ती जिस नाल ऐसी हाहाकार मची वड्डे तो वड्डे सूरबीरां दे भी होश उड़ गए। गिनती दे 40 ਸਿੰਘਾਂ उपर बेशुमार धाड़वी फौज आ चढ़ी। ये तेरी कही बहादुरी औरंगजेब, ये तो तेरी सूरमगति के मुंह ते लाणत तो वध होर कुछ नहीं। आखिर जदों रात की चादर ने दिन के सूरज नूं कज लिया दिन छुप गया तां रात का बादशाह चंद सुनहरी लिबास पा पूरी सज धज नाल अंबर ते चढ़ आया। ਜਿਹੜੇ लोग सिदकतार रब की रजा विच रहिंदे ने अकाल पुरख आप औखे पलां च उन्हां दा रहनुमा बनदा है। ना तो साडा कोई वाल ही विंगा होया ते ना ही साडे शरीर नूं कोई आंच आई क्योंकि दुश्मनां दा नाश करन वाले परमेश्वर ने सानू मुसीबतां चों कढ लिआंदा।
औरंगजेब, मैं नहीं जानता सी कि तू कसमा खा के तोड़ देगा। तू धोखेबाज है, तेरा ईमान भी दौलत का मुताज है, सच्चाई नाल तां तेरा दूर का भी वास्ता नहीं। ना ईमान परस्ती ना औज़ाए दीन, न साहिब शनासी न मोहम्मद यकीन। हरां कस के ईमान परस्ती कुनद, न पैमा खुदश पेशो पस्ती कुनद। मनी मर्दरा एतबारे न येस्त, चकुरा कसम नेस्त यजदा यकेस्त। बेकुरा कसम सद कुनद इख्तियार, मरा कतरा नायद अजो एतबार। तेरियां हरकतां तो साफ जाहिर है औरंगजेब कि तू ना तो दीनो ईमान ते कायम है ते ना ही तू रब ते विश्वास करने वाला है। ना तो तेनू अकाल पुरख की पहचान है, ना ही हजरत मुहम्मद साहब ते तेनू भरोसा है। जेड़े दीन ईमान दे पक्के होण उन्हां नू वाहिगुरू च भी परपक्क विश्वास हुंदा है। वो कसमां खा के दगा नहीं कमाया करते। उस आदमी ते मैनू भोरा पर भी यकीन नहीं जो अपने कहे बोलों तो मुकरदा है, जिसलिए कुरान पाक की कसम ते तौहीद बेमानी है। हुण जे तू 100 वार भी कुरान दियां कसमां खावे तां भी तू मैनू रत्ती पर यकीन नहीं दवा सकदा। अगरचे तुरा एतबार आमदे, कमर बस्ते पेशवार आमदे। के फर्जस्त बरसर तुराई सुखन, के कौले खुदाओ कसम ई बेमन। जे तेनू रब च विश्वास हुंदा तां तू बेझिझक कमर कसा कस के सामने आउंदा। जो तू कहा हुण तेरा फर्ज बनदा है तू सो ते कायम रहे तां जो तेरे बोलां दा आदर हो सके। अजिहा ना करन दी सूरत विच तू अपना निरादर आप करेगा। अगर हजरते खुद सितादा शबद, बजानो दिले कारवाजा बवद। हे औरंगजेब, जे तू खुद चल के मेरे सामने आउंदा तां सारियां गल्लां आमो सामने सच्चे दिलों निबड़ जांदियां। असीं तैनूं इस कमसान दे सारे कारणों की हकीकत समझा देंदे। शुमारा बेफर्जस्त कारे कुनी, बमूजब नविश्ता शुमारे कुनी। नविश्ता रसीदो बगुफ्ता जुबां, बेबायद कहीं कार राहत रसा। हमू मर्द बायद शब्द दीदावर, न शिकमे दिगर दर्दहाने दिगर। चे काजी मरा गुफ्त बेरू नयम, अगर रास्ती खुद बयादी कदम। तेरा लिखिया होया पत्तर ते जबानी स्नेहा मैनू मिलिया। तैनू चाहिदा सी कि तू किसी सुखांतक रूप च शांति नाल हर गुंजल सुलझाउंदा, हर काम नू सिरे लाउंदा। तैनू चाहिदा है कि तू अपने लिखे हुए ते अमल करे। मर्द अखवाउण लई मनुख नू चाहिदा है तू अपने बचना ते पूरा उतरे। जो उसकी जुबान ते होवे वही दिल च होना चाहिदा है। जे तेरी नीयत च ईमानदारी है तां तू वो सब गल्लां दी सच्चाई नाल पालना करेगा जो तेरे काजी ने मैनू दसियां ने, तां मैं भी उन्हां तो बाहर नहीं। तुरा अगर बेबायद कौले कुरान, बनज़दे शुमारा रसानन हमा। के तशरीफ दर कस्बा कांगड़ कुनद, वज़ा पस मुलाकात बाहम शवद। तेरे कुरान वाले कसमनामे हुण तक मैं संभाल रखे ने। तू आके वेख उन्हां दी आड़ च तू साडे नाल किन्ने अणमनुखी फरेब गुजारे ने। तू कांगड़ पिंड विखे तशरीफ लिया, आपो बह के आपां सब झगड़े छेड़े आराम नाल नजिठ लवांगे। नजर्रा दरी राहे खतरा तुरास्त, हमा कौम बैराड़ हुक्मा मरास्त। बयाता सुखन खुद जबानी कुनेम, बरुए शुमा मेहरबानी कुनेम। यके अस्प शाइस्ताए यक हजार, बयाता बगीरी बमनी दयार। अगर तू बेयजदा परस्ती कुनी, बकारे मराईना सुस्ती कुनी। बबायद के यजदा शनासी कुनी, न गुफ्ता कसा कस फराशी कुनी। ए दराउण च तेनू रत्ती पर भी खतरा नहीं, क्योंकि इस इलाके च वसन वाली बैराड़ कौम मेरे हुक्म विच है।
ਜੇ ਤੂੰ ਇਧਰ ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਤੇ 1000 ਘੋੜਿਆਂ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ। ਜੇ ਰੱਬ 'ਚ ਤੇਰਾ ਪਰਪੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ 'ਚ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਵੇਂ। ਐਵੇਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਹੈ। तू मसनद नशी सरवरे कायनात के अजबस्त इंसाफ हम सिफात अजबस्त इंसाफ परवरी के है फस्त सद है सरवरी। तू हुकूमत की गद्दी ते विराजमान पातशाह है, प्रजा दा सरदार है, पर तेरियां सिफतां ने ये तेरा न्याय है। अजीब जही गल है जिस तरह तू हुकूमत कर रहे हैं, बड़ी हासोहीनी गल है। धर्मी बंदियां वाले तेरे काम नहीं, बल्कि तेरा हर कर्म झूठा ते बेइंसाफी नाल भरिया है, जिस ते अफसोस है, 100 वार अफसोस है। अजबी अजबस्त फतवाए शुमा बजुज रास्ती हरफ गुफ्तन खता मजन तेग बखूने कसबे दरेग तुरा नीज खून चरख रेजत बितेग। सच्चाई तो उल्ट कुछ कहना करना आदमी दे खिलाफ ही नहीं, बल्कि खुदा दे खिलाफ कीता होया घिनौना पाप है। मैनू तेरी दोष आरोपण विधि ते हैरानी है, जो कि असलों मन घड़त है। ऐ औरंगजेब, तू रब दे कहर तो डर जो उसदा इंसाफ बनदा है। अपने हथ खून नाल ना रंग, क्योंकि इसदा मुल तैनू अपनी रत नाल तारना होवेगा। तो गाफिल मशो मर्द यजदा शनास क्यू बेनयाज अस्त अजहर सपास क्यू बेमहाबस्त शाहान शाह जमीनो जमा सच्चाए बादशाह। रब दी महानता ते उसका खौफ तेनू जरूर मन च वसाउणा चाहिए। उस बेपरवाह खुशामद रहत परवरदिगार नू पहचान। तैनू याद रखना चाहिए कि वह पातशाह दा पातशाह निरभय ते निडर है। वही सच्चा पातशाह खंडा ब्रह्मंडा दा स्वामी सर्व व्यापक है। खुदा बंदे इज्जत जमीनो जमा कुनद रास्त हर कस मकीनो मकान हमज पीर मोरे हमज पेलतन के आजिज नवाजस तो गाफिल शिकन। उस वाहेगुरु की होंद किसी दे सदका नहीं अते ना ही वो किसी सामने निमदा है। वो सारी सृष्टि का सिरजनहार है ते सरबत का करता भी वही है। निर्बल कीड़ी ते बलवान हाथी उसके हुक्म तो पैदा हुए ने। उसकी रजा नाल बलवान निर्बल अते माड़े महान बनते ने। के ऊरा चूसमस्त आजिज नवाज के अजहर सपास अस्तो बेनयाज कि ओ बेनगू अस्तो बेचगू कि ओ रहनुमा अस्तो रहनमू। गरीबां मस्कीना निमाणियां दा अकाल पुरख पालनहार है। उसकी प्रशंसा शब्द नहीं कर सकते। वो खुशामद तो बेलाग है, बेपरवाह है, वो बेमिसाल ते सर्वशक्तिवान है। वो किसी दे अधीन नहीं, वो सच्चा गुरु ते पूर्ण मार्गदर्शक है। उस तो बिना सानू किसी ते विश्वास नहीं। कि बरसर तुरा फर्ज कसमे कुरान बगुफ्ता शुमा कार खूबी रसा बेबाए तू दानिश परस्ती कुनी बकारे शुमा चीरा दस्ती कुनी। चाह शुद के चूं बच्चगा कुश्तचार के बाकी बिमा दस्त पेचीदा मार। चे मर्दी के अकगर खामोशा कुनी के आतिश तमारा फरोजा कुनी। चे खुश गुफ्त फिरदोसिए खुश जुबां शिताबी बवद कारे आहर मना। के माँ बारगाहे हजरत आयद शुमा अजा रोज बाशी तो शाहद हमा वगरना तुई हम फरामश कुनद
तुरा हम फरामोश यजदा कुनद। ਆਪਣੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਦੀ ਆਬਰੂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਉੱਪਰ ਪੂਰਨ ਅਮਲ ਕਰੇ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਆਪਣੀ ਰਿਆਇਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਘਿਰਨਾ ਯੋਗ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। 4 ਮਾਸੂਮ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਪਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਡੰਗ ਵਾਲਾ ਕੁੰਡਲਦਾਰ ਫਨੀਅਰ ਨਾਗ ਅਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅੱਗ ਦੇ ਲੰਬ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣੀ ਤੇ ਚੰਗਿਆੜਾਂ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਫਿਰਦੌਸੀ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਦੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਤ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਨੇ। ਕਾਲੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ਰਤ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਗਵਾਹ ਤੂੰ ਖੁਦ ਬਣ ਖਲੋਵੇਂਗਾ। ਜੇ ਹੈਂਕੜ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਕਾਰਈ ਬਰਤੂ ਬਸਤੀ ਕਮਰ खुदावंद बाशिद तुरा बहरवर के कारे ने कस्तदीन परवरी चू यजदा शनाफी बजा बरतरी। जे तू सियाणप तो कम लैके साडा कहा मन्ने ते ध्यानदारी नाल अमल करे तां रब तैनूं अपनी रहमत नाल नवाजेगा। इस श्रेष्ठ कारज नूं जे तू निभावेगा तां रब दीआं रहमतां दा भागी बनेगा। धर्म दी पालना दा करतब बहुत नेक है। जे तू रब नूं पछाणे तां इस तो भी उच्चा रुतबा पाएगा। तुरा मन दानम यजदा शनास बरामद जे तू कारा दिल खराश। शनासद हमी तो न यजदा करीम न ख्वाहिद हमी तो बदौलत अजीम। खौफनाक बदियां ते उतारू हो के तू अपने आप नूं रब दा बंदा आखदा है। ये किवें हो सकदा है? ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਰਨ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ ਰੱਬ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹਰ ਪਾਪ ਅਤੇ ਕਮੀਨੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਤੇਰੀ ਵਸੀ ਸਲਤਨਤ ਤੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਸਦਬੇ ਕੁਰਾਨ ਬਖੁਰਦੀ ਕਸਮ ਮਰਾਇਤ ਬਾਰੇ ਨ ਯਕ ਜ਼र्रा दम। हजूरी ना आयम नई राह शबम अगर शाह बुखाहद मना जा रवम। तू ऐसे हालात पैदा कीते ने कि जे हुण तू 100 वार भी कुरान दीआं कसमां खावें तां भी सानू उन्हां ते रत्ती भर विश्वास नहीं आ सकदा, क्योंकि असीं इन्हां कसमां दी हकीकत तो चंगी तरह वाकिफ हां। ना ही मैं तेरे कोल आवांगा ते ना ही ये रस्ता अख्तियार करांगा। जिथे रब ने चाहया मैं उत्थे जावांगा। ख्विश्त शाहे शाहा ने औरंगजेब के चालाक दस्तस्त चाबुक रकेब के हुस्नुल जमाल अस्तो रोशन जमीर। खुदाबंद मुल्कस्त साहिब अमीर के रोशन जमीर अस्तो हुस्नुल जमाल। खुदाबंदे बख्शंदे मुल्क माल के बख्शिश कबीर अस्तो दरजंग को हो। मलायक सिफत चू सरया शिको हो। शहनशाहे औरंगजेब आलमी के दाराई दूरस्तो दूरस्त दी। बेतरतीब दानिश बेतदबीर तेग खुदावंद देवो खुदावंद तेग। है औरंगजेब, तैनू अपने आप ते इस गल का माण होवेगा कि तू बहुत काबिल हुक्मरान ते शाह सवार है। तू सोहना ते समझदार भी है। तू मुल्क का बादशाह ते हाकमां दा सरदार है। तू मालक है ते माल दौलत दा बख्शण वाला भी। तू बख्शिश विच वड्डा है ते जंग विच पहाड़ वांग अडोल। तू तलवार दा तनी ते सूझवान है। तेरे खजाने अपार ने। तू फरिश्तियां दे गुणां वाला ते उच्ची शान वाला है। इन्हां तमाम खूबियां दे बावजूद है औरंगजेब ना तू रब ते ना मनुखता दे करीब हो सके हैं। ना तू लोकां नाल इंसाफ कीता है ते ना ही रब च विश्वास पैदा कीता है। सच्चे धर्म नाल तेरा दूर दा भी वास्ता नहीं।
मनम कुश्ताम कोहयां बुत परस्त क्या बुत परस्तंद ओ मन बुत शिकस्त। क्योंकि मैं बुत्तां नूं तोड़न वाला, इसलिए इन्हां बुत पूजा ने मेरे अजिहे होण ते कतलेआम मचाया, जिस करके मैनू इन्हां मक्कार पहाड़ी राजां चों बहुत सारे मार मकाउणे पए। बबी गर्दिशे बेवफाए जमां पसे पुश्तोफ्तद रसानद जयां। बबी कुदरते नेक यजदान पाक के अजयक बेदहलक रसानद हलाक। तू जमाने दा बेवफाई वाला चलन दा वेख, जड़ा मुख हाहाकार ते बेविश्वासी दे अजिहे माहौल नूं सिरजदा है, जिस दुश्मन बुजदला वांगू पिठ पिछों वार करन नूं अपना धर्म बना लेंदे ने। अकाल पुरख दा तू चमत्कार वेख कि उसने अपने हुक्म नाल मेरे बंदियां नूं अजिहे जोश नाल नवाजिया कि उन्हां कल्ले कल्ले ने लखां दी फौज नूं शर्मसार कर दिता। जे दुश्मन कुनद मेहरबास्त दोस्त के बख्शिंदगी कारे बख्शिंद ओस्त। रिहाई दहो रहनुमाई दहद ज़बारा बेसिफ्त आशनाई दहद। हसमरा चूकोरो कुनद वक्ते कार यतीमा बरूं बर्द बे जख्म ख्वार। राकस कजो रास्त बाजी कुनद रहीमे बरो रहम साजी कुनद। कसे खिदमत आयद बसे कल बुजा खुदावंद बख्शिंद बरो अमा। चु दुश्मन बरा हीला साजी कुनद बरो खुद खुदा चारा साजी कुनद। अगर बर यकामद दहो दह हजार निगाहबान ऊरा शबद किरदगार। दुश्मन उसका की बिगाड़ सकता है जिस ते रब मेहरबान होवे। उस दियां रहमतां इन्नियां विशाल ने कि जिस ते उसकी सवली नजर पैंदी है अनंत बख्शिशां उसका नसीब बनदियां ने। वो सच्चा मुक्तिदाता ते मार्गदर्शक है। उसकी पवित्र जात ही आत्मावां नूं लोक रसना नूं उसके जस गायन वाल प्रेरदी है। जदों अत दे संगीन हालात चो दयालु हुंदा है तां दुश्मन दीयां अखां हुंदियां अन्ना कर दिंदा है ते अनाथां नूं बिना किसी कष्ट दे विपचा चों कढ लैंदा है। जिहड़ा आदमी सच्चाई दा राह अख्तियार करदा है, किरपालू वाहिगुरू हर हालत च उसका सहाई हुंदा है, उस ते अपनी बख्शिश करदा है। जिहड़ा सच्ची आत्मा ते सच्चे दिलों वाहिगुरू दी खिदमत करदा है ते उस विच पूर्ण विश्वास करदा है, उसनूं रब सदीवी सुकून दी वडमुल्ली दौलत नाल निहाल करदा है। जदों कोई मक्कार दुश्मन किसी नूं अपने जुल्म दा शिकार बनाउंदा है तां अजिहे समय रब सच्चा उसकी रख्या करदा है। जे किते किसी एक बंदे उत्ते लखां आदमी चढ़ आउण तां सिरजणहार वाहिगुरू आप उसका रखवाला बनदा है। तुरा गर नजर अस्त बर फौजो जर बेमारा निगाह अस्त यजदा निगर। क्रूरा गरूर अस्त बर मुल्को माल बेमारा पनाह अस्त यजदा अकाल। तो आफिल मशो जी सपंजी सरा के आलम बगजुर्द सरे जा बेजा। जे तेरी नजर अपनियां फौजां ते दौलत ते खजानियां ते है तां साडी निगाह उस अकाल पुरख दे शुकराने वाल है। ऐ औरंगजेब बादशाह, जे तैनूं अपने राज भाग ते धन दौलत दा घमंड है तां सानू वाहिगुरू दियां रखां ने। तू इस सच्चाई तो अनजान ना बन। ये संसार फानी है, हर अमीर गरीब उच्चा नीवा चलनहार है। कुजा शाहे कै खुसरो जामे जम कुजा शाहे आदम सुपुर्दे अदम। फरीदू कुजा बहमन वस्पंद यार न इनकलाबे दारा दरामद शुमार। कुजा शाहे सिकंदरो शेर शाह के यक हम नमानदस्त जिंदा बेजाह। कुजा शाहे तैमूरो बाबर कुजास्त हमायूं कुजा शाहे अकबर कुजास्त। बबी गर्दिशे बेवफाए जमा के बरहर बगजुर्द मकीनो मकां। इस धरती ते किथे आ खुसरो जामे जम
किथे अशा आदम सब वक्त ने कबरी खपा छड़े, किथे गए फरीदू असफंद ते वड्डा बहादुर दारा, किसे दा नामो निशान तक बाकी नहीं। दस तां सही किथे ने शेर शाह ते सिकंदर, तैमूर, बाबर, शहनशाह हिमायूं ते अकबर, कोई है इस धरती ते सदीवी कुछ नहीं। इस जमाने दी नाशमानता नूं जान, वक्त दी रफ्तार नूं समझ, जदों रब बुलावेगा कोई नहीं इत्थे रहेगा, सब नूं इह घर महल माड़ियां छड्ड के तुरना होवेगा। तू गर जबर आजिज खराशी कुनद, पसम राबित तेशा तराशी कुनद, हके यार बाशिद च दुश्मन कुनद, अगर दुश्मनी राबे सदतन कुनद। अदू दुश्मनी गर हजारा बुर्द, न यक मुए ओरा हजारा बुर्द। अपने थोथे अभिमान ते झूठी शान दी लोच अन्ना हो के जे तू गरीबां नूं सतावेगा तां तेरियां कसमां तेरा मजाक उड़ाउणगियां ते परत दर परत तेरे किरदार दे कूड़ नूं नंगिया करनगियां। दुश्मनां दीयां सारियां फरेबी चालां ते सारे मकर बेअर्थ बना दिंदा ओ रब, जिस दे नाल खड़ा हो जावे। जे रब सच्चा मेहरबान होवे तां फेर भावें हजारां दुश्मन सारियां मकर चालां खेडण, वो एक वाल भी विंगा नहीं कर सकते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु गोबिंद सिंह नासरो